Yes. Are you able to see the screen over there? Can you please confirm? Hello? Yes, ma'am, your screen is visible. Okay, great. All right, I'll just stop the screen. Principal, ma'am, should we start? Yes, kindly start. Thank you. On 8th day of Women's Series being organized by Govinder Public College, Alot Khanna, NSS Unit, I, Dr. Ruchika Jain, Assistant Professor in Commerce and NSS volunteer of the college, I welcome the resource person of the day, Miss Ranjita Ramachandran, who is founder and head psychotherapist, All Mind Shift, and associate fellow of Albert Isles Institute, USA. I also welcome Dr. Nina Seth Pachni, Principal, Govind Public College, all NSS program officers, Professor Bagheera Duvinder Kaur and Dr. Mandeep Singh, faculty of Govind Public College, dignitaries present on the platform, and dear students. A very warm good afternoon to all of you. Well, being associated with Govind Public College, I would like to share Govind Public College is a multi-faculty co-educational institute affiliated to Punjab University, Chandigarh. The college offers the courses of BCom, BBA, BCA, BA, PGDCA, MA English, MA Punjabi. Well, I feel honored to share that NSS unit of the college is being awarded with Best NSS Unit among 208 colleges of Punjab University, Chandigarh. I also feel honored to share that college is being awarded with one district, one Green Champion Award by Ministry of Education under Swachhata Abhiyan 2020-2021. Well, to formally introduce our resource person of the day, I request our Principal Dr. Nina Seth Pachni to introduce to all of us Miss Ranjita Ramachandran. Yes, over to you, Madam Principal. Thank you, Dr. Ruchika Jain, and welcome to all the participants, and welcome, Dr. Rajita. Nice to meet you and have you here. So, ladies and gentlemen, today we have with us a practicing psychotherapist and a corporate trainer from Mumbai with 14 years of working experience in the field of mental health. She is Dr. Rajita Ramchandram. She did graduation in psychology from Mumbai University in 2006 and followed by post-graduation from SNDT University, Mumbai, and followed by associate fellowship from Albert Ellis Institute, USA. And she is the founder and head of Alt Mind Shift. It's very interesting name. So kindly share why you have this name. And the same name, the website is by the same name only, www.altmindshift.com. And services provided by this firm are in counseling and psychotherapy, professional mentoring, skill and psychotherapy to all the schools and education. And right now, currently, Miss Rajita Ramchandram is based at a very beautiful city at McLeodganj, that is the spiritual land of His Holiness the Dalai Lama.
and there she is providing consulting services to the corporate offices, schools, and to the Tibetan government projects with the young student teachers and parents. So Rajita ji, today is our 8th day of women's web series, and today's topic is women and psychological dilemmas. We like to have mixed kind of language. हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम हिंदुस्तानी और इंग्लिश हिंदी में मिक्स में बात करें, थोड़ी विमेन को लेके जो भी मनोवैज्ञानिक दुविधाएं रह जाती हैं, ऑल द डायलेमास एंड व्हाट दे फील, और किस तरह से क्या क्या लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पे सिचुएशन आती है, हम उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। और एंड में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स उसी से रिलेटेड लेंगे। तो ऑल द पार्टिसिपेंट्स आपकी जो भी क्वेरीज हो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम बाद में लेंगे। तो वेलकम टू यू मिस रचिता रामचंद्र। Thank you, ma'am. Thank you. That is so nice of you for such a warm welcome. Thank you, Dr. Ruchika and Dr. Pajni. It's my pleasure कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है आज आप सभी के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करने के लिए। और ये बड़ी सराहने वाली बात है जो 8 डे विमेंस एम्पावरमेंट पे विमेंस सीरीज जो चला आ रहा है। It's also a topic which is very close to my heart as a woman myself. So I'm looking forward to today's topic on psychological dilemmas and how to overcome that. तो चलिए मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। I'll just start sharing my screen. क्वेश्चन पूछना है, अगर कुछ बोल रही हूँ कि सुनने लो और मैंने कुछ नहीं सुना। एक मिनट एकदम रिकॉर्डिंग करो। नहीं ये बस ठीक है, एकदम करते हैं। Is the screen visible to everybody? Yes, that's Thank you. Great. तो just one thing that I would like to say before I start is कि मैं आप में से किसी को देख नहीं पा रही हूँ because मेरा screen full है right now, entire screen is shared. तो I won't be able to see any comments or anything also. तो yes, like Dr. Pajni was saying कि अगर आप में से किसी को भी कोई सवाल हैं, कोई queries हैं, तो प्लीज़ आप chat box में डाल दें। तो end में लास्ट के अराउंड 20 to 15 मिनट्स शायद हम इसको दे सकेंगे कि आई कैन डू Q&A देन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है दे इंक्लूड दिस पॉइंट्स। आई विल स्टार्ट विथ साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या होती है, क्योंकि आज हम साइकोलॉजिकल डिलेमास की बात कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। सेकेंड कि हम एज औरतें किन तरीके की प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस दुविधाएं किन तरीके की चीज़ें फेस करते हैं और उसकी रिलेटेड हम किस तरह से डिस्टर्बेंस से गुजरते हैं। तो ये कुछ साइंस होती हैं डिस्टर्बेंस की जिनके बारे में मैं आज बात करना चाहूँगी। और आखिरी में वील ऑल्सो मूव टू हाउ टू ओवरकम द डिलेमास, कि आप अपनी स्ट्रेसर्स को किस तरह से कम कर सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। वन इज़ एन एटीट्यूडनल चेंज, कि आप अपनी सोच विचार में किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं। एंड सेकंड इज़ बिहेवियरल चेंजेस, कि आप किस तरह से अपने एक्शन में चेंजेस ला सकते हैं या बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये जनरली एक डिस्कशन होगा इस पे। तो सबसे पहली बात मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य जिसे हम कहते हैं, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसकी कई परिभाषाएं हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम कहते हैं कि इंडिविजुअल्स स्टेट ऑफ वेल बीइंग, साइकोलॉजिकल कंडीशन एंड इमोशनल वेल बीइंग। तो किसी भी एक व्यक्ति की मानसिक परिस्थिति कैसे चल रही है, क्या वो अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को ठीक से कोप कर पा रहे हैं, क्या अपनी डेली नीड्स मीट कर पा रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा घबराहट फेस करते हैं, क्या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, या एक तरीके का डर है, या अपनी चीज़ों को अपनी डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, या किसी तरह की ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं, हर्डल्स फेस कर रहे हैं अपनी गोल्स को मीट करने के लिए।
क्या हम बहुत अक्सर किसी तरीके की डिप्रेशन फील करते हैं या फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, तो ये नेगेटिव इमोशंस जिनके बारे में मैं आगे भी बात करूंगी, तो ये होता है मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य कि आप किस तरह से अपनी एक इमोशनल बैलेंस रख पा रहे हैं या भावनात्मक समस्याओं को किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं एक और बात कहना चाहूंगी जो बहुत जरूरी लगता है मुझे, कि ये समझना जरूरी है कि हम इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है ये बहुत ही सामान्य होते हैं मनुष्य के लिए। एज ह्यूमन बींग्स इट इज कॉमन फॉर एवरीवन। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे मैं जानती हूँ जो कह सकता है कि मुझे कभी कोई इमोशनल प्रॉब्लम नहीं हुई हो या कभी किसी सहायता की जरूरत नहीं पड़ी हो। तो ऐसे कोई भी हम में से ऐसे कोई इंसान नहीं है जो एकदम परफेक्ट है या फ्लॉलेस है। इसलिए इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी उसी तरह कॉमन समझना बहुत जरूरी होता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम में से काफी बार कभी कभी लोग ऐसे भी एक तरीके की शर्म महसूस करते हैं कि अगर हमें कोई इमोशनल प्रॉब्लम है तो मतलब क्या हम पागल हो रहे हैं या क्या हमें कोई बीमारी हो रही है या ये मुझे क्यों हो रहा है, मुझे नहीं होना चाहिए था। तो अगर हम अपनी साइकोलॉजिकल डिलेमास से बाहर निकलना चाहते हैं, दुविधाओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपनी इमोशनल स्टेट को समझना, अपनी नीड्स को समझना, अपनी ज़रूरतों को समझना और अपनी कमियों को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम एक बैलेंस उसकी बिल्ड कर सकें। और इसके लिए सबसे एक ज़रूरी बात मैं समझती हूँ कि एक तरीके की सेल्फ एक्सेप्टेंस लाना खुद की तरफ, जिसे हम आत्म स्वीकृति कहते हैं। और मेंटल हेल्थ को भी हम उतना ही इम्पोर्टेंट समझें जितना हम फिजिकल हेल्थ केयर को समझते हैं। ऐसे कई बार होता है कि देखिए, जैसे अगर किसी भी तरह की शारीरिक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बुखार हो या कोल्ड कॉफ हो, तो हम पहले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन जब मानसिक स्वास्थ्य का वक्त आता है तब हम सोचते हैं कि शायद ये इतनी बड़ी चिंता नहीं है, शायद ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी हम अनदेखा कर देते हैं, कभी उसे इग्नोर करते हैं, कभी हम उसे इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, उसके लिए सेल्फ केयर या हेल्प लेना ज़रूरी नहीं समझते हैं। और इसके वजह से ऐसा होता है कि स्ट्रेस बिल्ड हो जाती है, जो डिलेमा है वो ख़त्म नहीं हो पाती और एक स्ट्रेस बिल्ड होती जाती है, जिसकी वजह से हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंस भी काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि बॉडी और माइंड कनेक्टेड है और रिलेटेड है। इसलिए मेरी यहाँ पे ये गुजारिश होगी आप सभी से कि आप मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझें जितना हम शारीरिक स्वास्थ्य को समझते हैं, ताकि हम इसकी सुरक्षा कर सकें। अब आगे देखते हैं कि स्ट्रेसर किस तरीके के देखे जाते हैं विमेन में या महिलाओं में, किन तरीके के दुविधाएं हम देखते हैं। तनाव के कई कारण देखे जाते हैं। हमारे ऑल्टमाइंडशिप में भी जो एक मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से महिलाएं आती हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अलग अलग सिटीज, इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड, विभिन्न प्रकार की उनकी लाइफस्टाइल चॉइसेस होती हैं या उनकी जर्नी रही है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड सब अलग अलग होती हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लेडीज हैं जो आते हैं जिनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रॉब्लम्स हम समझ सकते हैं, डिलेमास, साइकोलॉजिकल डिलेमास वुमेन के लिए कॉमन होती हैं। तो चलिए उनके बारे में भी बात करते हैं। जैसे फर्स्ट आप स्लाइड पे देख सकते हैं, एक है वर्क लाइफ बैलेंस, कार्य संतुलन जिसे हम कहते हैं, एक जीवन और कार्य का संतुलन रखना। एज विमेन हम काफी सारी चीजें करते हैं और हमारे ऊपर एक सोशल एक्सपेक्टेशन भी होता है। विमेन या औरतों पे एक बहुत हेवी सोशल एक्सपेक्टेशन होता है कि आप घर भी संभालें और साथ में बाहर भी। अच्छा, ऐसे भी होता है जो हमारे पास काफी सारे लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं जो कहते हैं कि मैं चाहे बाहर काम करूं ना करूं, लेकिन मुझे साथ में घर की सारी चीजों का देखभाल करना जरूरी होता है और मैं इसके बीच दब जाती हूँ क्योंकि मुझे फिर खुद के लिए वक्त नहीं मिल पाता या मुझे अपनी जरूरतों को समझने या बोलने का मौका नहीं मिलता। तो इस तरह से काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपेक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती है, उम्मीदें रखी जाती हैं और वो भी एक तरीके की डिलेमा या स्ट्रेसर बनती है लेडीज के लिए कि आप घर
आपको 100% देखना है, भले आप बाहर देखें ना देखें। तो इस तरह से काफ़ी बार लेडीज़ के लिए एक ये सोशली एक डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। और इसके बीच प्रॉब्लम ये हो सकता है कि औरतें ना बोलने से हिचकिचाती हैं। कई बार एक घबराहट हो जाती है, एक डर पैदा हो जाती है कि अगर मैं अपनी बात आगे रखूं तो क्या लोग उसे समझ पाएंगे, क्या घर में कोई बहुत बड़ा तनाव का माहौल शुरू हो जाएगा, या किसी तरह का टकराव अगर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट। तो किसी भी तरह हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें, फाइट्स ना हो। या फिर मेरी बात शायद कोई सुनेगा ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं, क्या मुझे बोलना चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स होती हैं, एंग्शियस थिंकिंग होती है, जिसकी वजह से हम अपनी असर्शन आगे नहीं ले पाते। या ना बोलना, असर्शन का मतलब होता है कि आप ना बोल पाए जब आपको इच्छा फील होती है, जब आपको कोई चीज नहीं पसंद आ रही है, तो आप अपनी बात आगे रख पाए, अपनी कम्युनिकेशन एक्सप्रेस कर पाए, अपनी नीड्स और जरूरतों को आगे कर पाए। तो और इसमें भी कोई गलत बात तो है नहीं, लेकिन सोसाइटी में एक और डिलेमा भी होती है कि ये भी कहा जाता है कि अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़े सेल्फिश हैं, और ये गलत बात है। तो ये भी एक तरीके की फॉल्टी थिंकिंग होती है, जिसके वजह से स्ट्रेस काफी औरतों में भी फील होती है कि वो काफी दबा हुआ महसूस करती हैं, अगर स्पेशली अगर उनमें पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस ना रहा हो। और ये एक तरीके की साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बन जाती है। तो इससे जुड़ी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ प्रिजर्वेशन, कि खुद की जरूरतों को कैसे समझे, उनकी देखभाल कैसे करें। और आत्मनिर्भरता, जिसका मतलब इंडिपेंडेंस या सेल्फ रिलायंस जिसे हम कहते हैं, कि हम कैसे सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल डिलेमा होती है और एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेसर हो सकता है। मैनेजिंग मूड्स, इनके अलावा क्योंकि औरतों के लिए एक एडिशनल फैक्टर हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मंथली साइकिल्स, और उनके साथ साथ अपने मूड्स को भी हैंडल करना, हार्मोन्स के साथ जो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको भी हैंडल करना। जैसे काफी बार लोग कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होता है और मैं तभी बहुत अवॉइड करती हूँ या बात नहीं कर पाती हूँ, या मुझे अपनी बात बोलने के लिए एक मौका नहीं दिया जाता, इसलिए मैं उम्मीद छोड़ देती हूँ। तो ये सारी चीजें मूड्स के साथ भी चल सकती हैं साथ ही साथ, तो इन्हें भी समझना जरूरी, क्योंकि ये हमारी एक डिलेमा इससे भी क्रिएट हो सकती है। एक प्रॉब्लम हो सकती है प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे हम कहते हैं, या टालना। जब हम बहुत सी चीजें एक साथ संभाल रहे हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि हम उसे प्रायोरिटाइज कैसे करें या मैनेज कैसे करें, स्पेशली अगर हम कुछ चीजें हैं जिन्हें हम ना नहीं बोल पा रहे हैं या कहीं बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कभी ऐसे, मैं एक उदाहरण के तौर पे एक बताना चाहूंगी, आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगी कि जैसे एक लेडी आई थी, वो बड़ी एम्बिशियस प्रोफेशनल है, डेंटिस्ट है, उनकी खुद की क्लिनिक है, बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन अपनी घरेलू जिंदगी में वो बहुत ही स्ट्रेस फील करती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनको घर में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो स्पेशली उनके इन-लॉज के साइड से, क्योंकि उनका कहना था कि उनके इन-लॉज नहीं चाहते थे कि वो काम करें, और या उनको फर्क नहीं पड़ता था कि ये काम करे या ना करे। तो इसलिए उस एंड से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था कि क्लिनिक खत्म करते ही 8:30 बजे जब वो घर पहुंच जाती तो एकदम एक स्ट्रेस के साथ घर पहुंचती थी कि अब मुझे खाना भी बनाना है। तो और अगर जिस दिन वो ना बना पाए तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता था, घर में परिस्थिति खराब हो जाती थी। तो ये तो एक सिचुएशनल प्रॉब्लम थी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम साथ में ये थी कि वो अपनी बात नहीं बोल पाती थी, क्योंकि वो सहायता या मदद नहीं मांग पाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि मेरे बोलने से अगर मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच किसी तरह की अनबन हो जाए, अगर मैं उनके पेरेंट्स से बात करूं और मेरे हस्बैंड के साथ अगर अनबन हो जाए तो क्या होगा, तो हमारे रिलेशनशिप या मैरिज का क्या होगा। तो इनके दिमाग में इतनी डिस्टरबेंस हो गई थी कि जिसकी वजह से अपनी सारी नीड्स दबा के एक प्रेशर में चल रही थी। और ये हम सभियों के साथ बहुत कॉमनली हो सकता है, कहीं ना कहीं हम सभी लोग प्रेशर फील करते हैं। तो इसके वजह से ये प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो रहा था।
इसका असर काम पर भी पड़ रहा था कि वो फोकस नहीं कर पा रहे। तो देखिए किस तरह से कितनी सारी चीजें रिलेटेड हो सकती हैं, और इसीलिए इन डिलेमास को समझना और उनकी सॉल्यूशंस के ऊपर सोचना बहुत जरूरी होता है। लेडीज में एक और इश्यू देखी जाती है, मतलब एक डिलेमा और एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और देखा जाता है। मर्दों से ज्यादा ये लेडीज में पाई जाती हैं कि स्ट्रेस ईटिंग जिसे हम कहते हैं। या तो स्ट्रेस जब हम फील कर रहे हैं, या तो हम ज्यादा खा लें, जैसे कोई पेस्ट्री मंगा लेना, कोई चीज मंगा लेना ताकि हम अपने दिमाग में स्ट्रेस को दबा लें और खुश फील करें, इन कंट्रोल फील करें, तो उसे स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार इतनी एंग्जाइटी बढ़ जाती है जिससे हम खाना ही नहीं खा पाते, तो हमारी भूख मिट जाती है, तो ये भी एक तरीके की स्ट्रेस इम्पैक्ट हो गई। एंड ऑफ कोर्स फाइनली एक सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, वो भी एक तरीके की साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकती है, लेडीज में पाई जाती है। ये मेन और वुमेन दोनों में होती है, लेकिन लेडीज में ज्यादा सेल्फ इमेज, बॉडी इमेज को लेके इश्यूज भी होती हैं कि अपनी अपीयरेंस को लेके। जैसे कि कई बार ऐसे भी आए हैं कि कुछ लेडीज हमारे पास ऐसे भी आए जैसे कि वो शेयर करती हैं कि उनकी स्किन कलर को लेके उनकी कॉन्फिडेंस नहीं है, या अपने आप को, अगर वो सांवले हैं या काले हैं तो अपने आप को कम समझना, या कॉन्फिडेंट नहीं फील करना कि आप खुल के बाहर लोगों के साथ घुले मिले, तो या कम्युनिकेशन को लेके भी लो कॉन्फिडेंस फील करना। तो ऐसी कई तरीके की स्ट्रेसर्स या डिलेमास पाई जाती हैं, और विमेन को विमेन के साथ हम ज्यादा देखते हैं कि बॉडी इमेज इश्यूज होती हैं, क्योंकि अगर आप देखें हर तरीके की सोशल मीडिया पे, आप एड्स में, यहाँ वहाँ हर जगह आप देखें कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में सिर्फ विमेन को ही आगे दिखाया जाता है, और एक बहुत ही आइडियल बॉडी शेप, एक बहुत ही आइडियल इमेज, स्किन कलर, ये सब बताई जाती हैं, जिसकी वजह से एक तरीके की शर्मिंदगी या एक तरीके की शेम महसूस हो सकती है लेडीज में, और ये भी एक तरीके की स्ट्रेसर होती है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि किन तरीके की इमोशंस को हम डिस्टर्बेंस समझते हैं। एज ए साइकोथेरेपिस्ट मैं आपको आज ये भी समझाना चाहूंगी कि हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्टर्बेंस। मान लीजिए कि आप कोई चीज करना चाह रहे हैं और आप कोई प्लानिंग करते हैं, जैसे कि लेट्स से फ्यूचर एजुकेशन। आप मान लीजिए कि आगे जाने के लिए आप कहीं एजुकेशन करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी रिजेक्ट हो गई, लेट्स अज्यूम इन द लास्ट मिनट। अभी कोविड के टाइम पे ऐसी काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज भी रही हैं जिनके साथ हमें ऑन अ डे टू डे बेसिस जूझना पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि ये सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में अगर आप डिसअपॉइंट होते हैं तो वो हेल्दी होगा। अगर आप सैड फील करते हैं तो हम इसे हेल्दी नेगेटिव इमोशन कहते हैं, क्योंकि इंसानों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस ही फील करें। तो डिसअपॉइंटमेंट फील करना बहुत नेचुरल होता है, सैडनेस फील करना बहुत नेचुरल होता है, लेकिन इसे हम डिस्टर्बेंस से अलग समझते हैं। डिस्टर्बेंस का मतलब है जब भी हम इतने ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि हम अपनी बाकी की चीज़ें नहीं कर पाते या फोकस नहीं कर पाते, या बहुत डिस्टर्ब, बहुत उदास, बहुत ज़्यादा हैवी फील करते हैं। तो ये कुछ इमोशंस हैं जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में रखी हैं, जो आप समझ सकते हैं कि इन इमोशंस को हम डिस्टर्बिंग इमोशंस कहते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ फील हो रहा हो तो समझ लीजिए कि शायद आपको सहायता लेने की ज़रूरत है, शायद आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, मेंटल हेल्प लेनी चाहिए, ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स से बाहर निकल सकें, अपनी स्ट्रेस को कम कर सकें। तो जिसे सबसे पहले हम कहते हैं एंग्जाइटी, जिसे हम चिंता भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होना, चिंता हमेशा लगा रहना। अगर बहुत ज़्यादा चिंता हो जाए तो उस पैनिक अटैक्स भी होती हैं। पैनिक अटैक्स का मतलब है जिसे हम कहते हैं, जैसे एक सेंसेशन, फिजिकल सेंसेशंस, जैसे कि ब्रेथलेसनेस, ऐसा फील होना कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, बहुत चोक्ड फील करना, या बहुत स्वेटिंग करना, या अगर आप बहुत कांप रहे हैं। तो ये सारी शंकाएं हैं, मतलब ये सारी है साइंस कि आप शायद पैनिक अटैक भी फील कर रहे हो। तो डिस्टर्बेंस और डिसअपॉइंटमेंट में डिफरेंस ये होता है
कि आप अपनी दिमाग में किस तरह की सेल्फ टॉक रखते हैं। जैसे मैंने आपको सिचुएशन समझाया कि मान लीजिए आप कुछ प्लान कर रहे थे और वो नहीं हो पा रहा, लेट्स से कि वो रिजेक्ट हो गई प्लान। अगर आप डिसअपॉइंटेड है या हेल्दीली डिसअपॉइंटेड है, तो शायद आपकी सोच थोड़ी इस तरह होगी कि ये तो बहुत बुरा हुआ, अब तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ और ये अच्छा नहीं हुआ, मुझे बहुत ही सैड फील हो रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे और ट्राई कर लेंगे, इसके कोई सोल्यूशन और शायद निकल आए। ये हो गया एक तरीके का सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक वो होता है, सेल्फ टॉक हम इसे कहते हैं जिससे द वे वी टॉक टू आवर सेल्फ इन आवर माइंड, हाउ वी परसीव अ प्रॉब्लम, कि हम एक सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं और उसके बारे में हम क्या मीनिंग बनाते हैं दिमाग में। तो उससे हमारी जुड़ी होती है इमोशंस, या तो हमारी इमोशंस हेल्दी हो सकती हैं या फिर हमारी इमोशंस डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। तो अगर आपकी इस तरीके की कोपिंग सेल्फ टॉक है तो आप हेल्दी नेगेटिव इमोशंस भी फील कर पाएंगे, जिससे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, स्ट्रेस कम बनी रहेगी। लेकिन अगर आपकी सेल्फ टॉक डिस्टर्बिंग है, जैसे कि या बहुत एक्सट्रीम है, जैसे कि मैंने अगर यही सिचुएशन में ऐसे सोच लिया कि ये तो कभी नहीं होना चाहिए था, अब आगे चल के क्या होगा, अब तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद है, अब शायद मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अब मुझे आगे और कुछ फ्यूचर नहीं मिलेगा। अगर हम इस तरह से सोचे, देखिए ये दोनों क्वालिटी ऑफ सेल्फ टॉक अलग अलग है। एक में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, जहां हम सोच रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, शायद आगे चल के कुछ और हो सके, कुछ अच्छा हो जाए, या इसको देखने का आगे और कोई सोल्यूशन निकल आए। तो ये एक हेल्दी सेल्फ टॉक है। लेकिन एक अनहेल्दी सेल्फ टॉक वो होती है जहां से हमारी डिस्टर्बेंस निकल आती है। अगर मैं ये सोच लूं कि आगे अब मेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा, या इसके आगे और कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कोई होप नहीं है और मुझे प्लानिंग ही छोड़ देनी चाहिए, अगर मैं इस तरह से सोचूं तो शायद मैं एंग्शियस फील करूं, बहुत ज्यादा घबराहट हो जाए, या शायद मैं बहुत निराश फील करूं, या फिर कईयों को डिप्रेशन भी फील होती है जब वो उम्मीद ही छोड़ देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि किस तरह से आपकी इमोशंस आपकी सोच से रिलेटेड होती है। आप जिस तरह से सोचते हैं उस तरह की आपकी इमोशंस बनती है किसी भी सिचुएशन में। और इसीलिए अपनी साइकोलॉजिकल डिलेमा से अगर आप उभर के बाहर निकलना चाहते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढना चाहते हैं, तो अपनी सोच पे अगर आप किसी तरह के बदलाव लाएंगे ताकि वो डिस्टर्बिंग थॉट्स ना आए, तो आप अपनी प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस भी काफी निकाल पाएंगे। तो डिस्टर्बिंग इमोशंस ये रही, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पाल के रखना, या बहुत गुस्सा आना, होपलेसनेस, एक तरीके की निराशा, गिल्ट फीलिंग भी बहुत अनहेल्दी होती है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है हमारे लिए, जिसे हम अपराध की भावना कहते हैं। कई औरतों में भी ये पाई जाती हैं, जैसे कि हम जब कहते हैं कि हमें घर भी संभालना है, बच्चों को संभालना है, अलग अलग चीजें करनी है, या फर्दर स्टडीज करनी है, तो क्या मैं ये वक्त घर पे दे पा रही हूँ, क्या अगर मैं बच्चे को वक्त नहीं दे पाऊँ तो क्या मैं बुरी माँ हूँ। तो ये एक तरीके की गिल्ट फीलिंग हो गई है ना, तो ये भी एक डिस्टर्बेंस जनरेट कर सकती है जिसकी वजह से हम ब्लॉक्ड फील करते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया लोनलीनेस या तन्हाई, एक इमोशन हेल्पलेसनेस भी होती है जिसे बेबसी कहते हैं, और शर्म। तो ये बेसिकली कुछ 8 disturbing 6 sorry yes you can see about 6 7 8 disturbing emotions that I have put down on the slide here। और अगर आप इसको अपनी अवेयरनेस में रखें तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद भी सॉल्व कर पाएंगे, या एटलीस्ट आप सही तरीके की हेल्प आगे चल के ले पाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं कि हम अपनी डिस्टर्बिंग साइंस को कैसे पहचानें, मतलब क्या संकेत हैं जिससे हम मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को पहचान पाएं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये स्लाइड पर कुछ संकेत हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार्य पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कोई चीज कर रहे थे पहले, कोई भी अगर बिहेवियर में आपकी चेंजेस आ रहे हैं, ऐसी अगर कोई चीज है जो आप पहले कर पाते थे और अभी नहीं कर पा रहे हो, या अभी करने पे आप स्ट्रगल बहुत कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक साइन है, एक संकेत है कि शायद आप डिस्टर्बेंस महसूस करने लगे हैं। तो अगर बिहेवियर्स में देखें तो जैसे कि नींद की समस्या, नींद कम आना, या फिर बहुत ज्यादा सोना,
अगर तनाव के कारण आप ज़्यादा खाने लगे हैं या कम खाते हैं, अगर आप मानसिक थकावट महसूस करते हैं, एक तरीके की मेंटल एग्जॉशन जिसे हम कहते हैं कि बस और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, मैं थक चुकी हूँ, तो ये होता है कि एग्जॉशन वाली फीलिंग, जिसकी वजह से हम चीज़ों को अवॉइड भी करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक अगर आप चिड़चिड़ापन महसूस कभी करते हैं, या अगर आपकी मूड्स लो फीलिंग होती रहती है काफ़ी बार लगातार, तो ये भी एक संकेत है। नेक्स्ट, अगर आप किसी तरह की मेमोरी लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कोई चीज़ें आपको अभी याद नहीं रहती, छोटी छोटी चीज़ें आप भूलने लगे और ये लगातार होते आ रहा है, तो ये भी एक संकेत है। अगर आप की जीवन में रुचि कम हो रही है, या आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन, अपने आप को आइसोलेट करने लग गए हैं, या किसी चीज़ से आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये भी एक संकेत है। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता फील करते हैं, किसी भी तरह की घबराहट, वरी, फियर्स या एक्सट्रीम गिल्ट, इन तरीके की अत्यधिक भावनाएं, तो ये भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट, अगर आपकी ऊर्जा कम महसूस होती है, एक एनर्जी, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फिजिकली, अगर आप रोज़मर्रा की डेली प्रॉब्लम्स को नहीं कोप कर पा रहे हैं और बहुत जल्दी आप एकदम या फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं या टायर्ड फील करते हैं, वो एक हो सकती है संकेत। नेक्स्ट, अगर आप शराब या नशीली दवाओं का प्रयोग भी कर रहे हैं, ये भी एक संकेत होता है। कई बार हम इनकी तरफ भी जाते हैं जस्ट अपनी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, तो वो भी एक संकेत हो सकता है। एंड अगर आप किसी भी तरह की एक्सेसिव एंगर, अगर आप बहुत गुस्से में रहते हैं, या आप सुसाइड, जिसे हम कहते हैं आत्मघाती सोच, तो ये भी एक संकेत होती है ऑफ डिस्टर्बेंस। अब बात करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ सुझाव हैं, 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज कि जो संकेत हैं उन पर आप प्लीज ध्यान दें और उनको अनदेखा ना करें, क्योंकि ये आगे चल के फिर इमोशनल प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, वो अपने आप खत्म नहीं होती, कि उन्हें सुलझाना पड़ता है, नहीं तो वो बढ़ती जा सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे संकेतों पे ध्यान दें। सेकेंड, आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करें। थर्ड, कि अपना अच्छा ध्यान आप खुद रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, समय पे सोना, समय पे खाना, अपनी नीड्स का ध्यान रखना, और सोचना कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ, और उनके बारे में एक्सप्रेस करना। कई बार महिलाओं के लिए उनकी ज़िंदगी उनके आसपास के लोगों के अराउंड ढल जाती है, और ये हो जाता है कि वो कभी कभी फील करते हैं कि उनकी खुद की आइडेंटिटी वो भूल चुकी हैं कि मैं क्या चाहती थी, मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग भी हो जाती है कभी कभी लोगों के आसपास, कि मेरे हस्बैंड ये चाहते हैं, या मेरा बॉयफ्रेंड ये चाहता है, या मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, तो इसलिए मुझे ये करना चाहिए। लेकिन फिर खुद की जो इंडिपेंडेंस है वो दब जाती है, या खुद की, या एक तरीके की गिल्ट भी फीलिंग होती है कि मुझे खुद के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक सेल्फिश बिहेवियर होगा। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके की साइकोलॉजिकल डिलेमास बहुत हम देखते हैं लेडीज में। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कॉग्निटिव मॉडल से। ये कॉग्निटिव मॉडल, इसके बारे में मैं बस अभी कुछ ही देर पहले भी इन अ वे बात कर रही थी कि आप सब कुछ एक सोच पे निर्भर होता है कि आप किस तरह से अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि अगर आप अपनी सोच पे ध्यान दें और किसी तरह की फॉल्टी थिंकिंग या फॉल्टी एटीट्यूड्स को चेंज करें, तो आप अपनी इमोशंस को भी चेंज कर पाएंगे। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि अपनी थॉट्स से हमारी इमोशंस आती हैं और हमारी इमोशंस से हमारी बिहेवियर आती है। तो किसी भी सिचुएशन में अगर हम रखें आप 10 लोगों को और देखें एज एन एक्सपेरिमेंट, तो सबकी अलग अलग थॉट्स हो सकती है। तो इसका ये मतलब बनता है कि आप अपनी थिंकिंग पे चेंजेस लाके, अपनी एटीट्यूड पे चेंजेस लाके अपनी डिस्टर्बेंस या स्ट्रेस को कम कर सकते हैं
और सिचुएशन पे डिपेंडेंट होके रहना जरूरी नहीं है। तो किस तरह से आप अपनी एटीट्यूड्स को चेंज कर सकते हैं, सोच में बदलाव कैसे लाया जा सकता है, अपनी डिलेमास को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। हमारे इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में ये देखे गए कि काफ़ी सारी ऐसी एटीट्यूड्स होती हैं, सोच होती हैं जो औरतों को अपने अंदर ही कैद एक तरह से कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड पे, सम ऑफ द फॉल्टी रिजिड एटीट्यूड्स, खुद की देखभाल करना, लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ इज अ सेल्फिश थिंग। अच्छा, ऐसे बार भी कई औरतें एक्सपीरियंस करते हैं कि अच्छा तुम कुछ ज़्यादा ही अपना ख्याल रख रही हो, तुम इतना ज़्यादा प्रिटी क्यों बनना चाह रही हो, इतना ज़्यादा अपनी ब्यूटी का ख्याल क्यों करना चाह रही हो। तो उस पर भी एक गिल्ट, कभी ना कभी एक गिल्ट तरीके की फीलिंग भी आ जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि इस सोच से आप बाहर निकल सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, और उसमें दबना ज़रूरी नहीं है। आप अगर अपने नीड्स के बारे में सोचते हैं, अपनी केयर के बारे में सोचते हैं, तो ये कोई सेल्फिश चीज़ नहीं होती, ये एक बहुत हेल्दी चीज़ होती है। और सेल्फ केयर हम सभी को करना चाहिए, स्पेशली वुमेन को भी, क्योंकि हेल्थ वाइज भी हम देखते हैं कि वुमेन में काफ़ी सारी बोन डेंसिटी या फिर आयरन की कमी, ये सब चीज़ों को हम समझते हैं कि किस तरह हेल्थ में भी स्टेटिस्टिकली वुमेन में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो यस, सेल्फ केयर भी करें, क्योंकि सेल्फ केयर अगर आप साइकोलॉजिकली हेल्दी फील करेंगे तो आप फिजिकली भी अपने एनवायरनमेंट में ज़्यादा हेल्दी रहेंगी, ज़्यादा खुश रहेंगी। तो ये एक फॉल्टी एटीट्यूड होता है सोचना कि खुद का ख्याल मुझे नहीं करना चाहिए, या लोग बात करेंगे, लोग सोचेंगे, इस शर्म से आप अपना ख्याल रखना छोड़ दें। सेकेंड, दैट एवरीवन मस्ट अग्री विथ माय डिजायर्स एंड नीड्स, कि अगर मैं कोई चीज़ करूं या अपनी बात आगे रखूं, अपनी बात सामने रखूं, तो लोगों को खुशी खुशी समझ जाना चाहिए, सब कुछ स्मूथ होना चाहिए, किसी तरह की हैसल, प्रॉब्लम या कोई बाधाएं नहीं पड़नी चाहिए। ये जो होती है एक तरीके की एक फॉल्टी रिजिड एटीट्यूड, इसको भी चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही आइडियल एक्सपेक्टेशन हम अक्सर रखते हैं अपने दिमाग में कि हमारे आसपास लोग समझ जाएं तो बेहतर है, तो मुझे ज़्यादा फिर कोई तनाव का सिचुएशन नहीं होगा। पर ये बहुत ही आइडियल होता है एक समझना कि सभी लोग साथ साथ चले, सब चीज़ को समझें। तो इसलिए जो हिचकिचाहट अगर है कि आप अपनी बात बोलें, तो उससे आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये भी एक रिजिड एटीट्यूड है और एक फॉल्टी एटीट्यूड है कि हमेशा एवरीवन मस्ट अग्री व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस योर नीड्स, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग योर नीड्स। नेक्स्ट पॉइंट, कि कभी किसी भी तरीके के टकराव में हम एंगेज ना करें। ये भी हमें काफ़ी बार बताया जाता है कि आपको एडजस्ट करना है, आपको एडजस्ट करना है। औरतों को खास करके ये बहुत बताया जाता है कि एडजस्ट कर लो और अपनी बात मत रखो, क्योंकि कोई तनाव का सिचुएशन हो जाएगा, कोई टकराव हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से भी काफ़ी औरतें दबी हुई फील करती हैं और वो कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ पाती कि अपनी बात सामने रखें, जैसे मैं कह रही थी। तो ये भी एक गलत सोच है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल है तो उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पर क्या इसका मतलब ये है कि आप अपनी नीड्स एक्सप्रेस ना करें? तो ये भी एक सोचने वाली बात है। नेक्स्ट, so the next point is must not displease or disappoint others, which means कि कभी किसी और को निराश नहीं करना चाहिए, और अगर हमने कभी किसी और को डिसअपॉइंट कर दिया तो which means I am not a good person, कि ये भी एक गिल्ट वाली फीलिंग क्रिएट करती है, जिस वजह से औरतों में देखा जाता है कि वो काफ़ी बार अपने नीड्स को दबा देते हैं और दूसरों के लिए चीज़ें करते हैं और फिर खुद खुश भी नहीं रह पाते। अगर आप खुशी खुशी कोई चीज़ कर रही है तब तो प्रॉब्लम की बात ही नहीं है ना। लेकिन अगर आप कोई और चीज़ करना चाहते हैं लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे या आप अपनी बात नहीं बोल पा रहे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
तो ये भी एक बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम सभी को खुश रखें, सभियों का हर किसी के नीड का ख्याल करें और कभी कोई और डिसअपॉइंट ना फील करें। नेक्स्ट के कंडीशंस मस्ट बी हैसल फ्री। हैसल फ्री या जिसे हम कहते हैं बाधाएं नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कोई चीज करूं तो मुझे किसी भी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए, और ये भी एक बहुत ही रिजिड और अनरियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि काफी सारी प्रॉब्लम्स बिकॉज हमारी सोच पे निर्भर है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती कॉग्निटिव मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप अपनी सोच को बदलें और अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेंज करें। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि आपने एक्सपेक्टेशंस बंद कर देना है या एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ये भी गलत है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम अपने एक्सपेक्टेशंस रखना बंद तो नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को अगर फ्लेक्सिबल बना दें, है ना, मतलब कि उन्हें फॉल्टी कैटेगरी से निकाल के, रिजिड कैटेगरी या इनफ्लेक्सिबल कैटेगरी से निकाल के अगर आप फ्लेक्सिबल कैटेगरी में डाल दें कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर चाहूँ तो सब सही हो, सब मेरे जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही हो, या कोई बाधाएं ना पड़े, और मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं इस तरह से सोचूं और एक्सेप्टेंस लेके आऊँ तो फिर मैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आगे फेस भी कर पाऊंगी। तो ये इस तरीके की आप सोच में एक फ्लेक्सिबिलिटी अगर क्रिएट करें तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेक में रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर पाएंगे। एक तरीके की एम्पावरमेंट जिसे हम कहते हैं वो इससे आती है कि आप अपनी रीजनिंग स्किल्स पे अपनी एम्पावरमेंट ला सकते हैं और अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, आई मस्ट मैनेज एवरीथिंग इन परफेक्ट वे। ये भी एक तरीके की एक एंग्शियस थॉट होती है कि अगर मैं कोई चीज़ करूं तो उस सब कुछ बहुत परफेक्टली चलना चाहिए। एज वीमेन जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि घर भी संभालो, बाहर भी संभालो, या फिर सब चीज़ें परफेक्टली करो, कुकिंग भी टाइम टू टाइम करें, वर्क प्रोजेक्ट्स भी टाइम टू टाइम करें, और इसमें कोई चीज़ में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं और मैं सबको खुश रखूं, अगर इस तरीके की एक्सपेक्टेशन है तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक हो जाएगी अगेन, एंड विच इज़ वाई चेंजिंग द इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड टू अ फ्लेक्सिबल एटीट्यूड कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड फाइनली एक और रिजिड एटीट्यूड होती है कि आई मस्ट नॉट फेल इफ आई टेक रिस्क। कि अगर मैं अपनी डिसीजंस खुद लूँ और मान लो अगर वो गलत निकला तो क्या, फिर तो लोग मुझे कहेंगे कि तुमने ये गलत चॉइस ली। और ये एक सोच होती है सेल्फ टॉक जो फिर एक तरीके की घबराहट, फियर क्रिएट करती है, एक तरीके की डर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी सारी महिलाएं अपनी फिर स्टेप्स आगे नहीं ले पाते और वो अगेन अपने आप को दबी हुई फील करती हैं, अपनी नीड्स को गिव अप कर देती हैं, या किसी भी इंडिपेंडेंट रिस्क को लेने से डरती हैं। तो अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, अपनी प्रोज एंड कॉन्स को समझें और ये समझें और ये एक्सेप्ट करें कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और अगर आप फेल भी हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रिस्क लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी इंडिपेंडेंस शुरू होती है। तो अगर ये इस तरीके की आप फ्लेक्सिबल थिंकिंग बना लें तो आप इस सोच में भी बदलाव ला सकते हैं, जिससे आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया एक कैटेगरी ऑफ रिजिड जिसको आप फ्लेक्सिबल एटीट्यूड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक है अनबेरेबिलिटी एटीट्यूड। अनबेरेबिलिटी एटीट्यूड का मतलब है हम कहते हैं अपने आप से इन आवर सेल्फ टॉक कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस ये बहुत हो चुका अब और मेरे बर्दाश्त के बाहर है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लग रही और आप कह लेते हैं अपने दिमाग में कि नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो फ्रस्ट्रेशन जो फील होती है उससे भी एक स्ट्रेस क्रिएट होती है ना। तो ये अगर आप बार बार ये डायलॉग बोलें कि बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम एक क्रिएट हो जाएगी। इसलिए इस एटीट्यूड को भी चेंज करना ज़रूरी है कि अपनी एक बेरेबिलिटी क्या हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सारी कंडीशंस आइडियल होना ज़रूरी नहीं होती। तो क्या मैं इस
इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करके आगे चल सकती हूँ, ताकि आगे मैं अपनी वेरिएबिलिटी भी बढ़ा लूँ। एंड फाइनली ऑफुलाइजिंग एटीट्यूड जिसे हम कहते हैं, जैसे कि ये सोच लेना कि अगर कुछ ऐसा ऐसी कोई परिस्थिति अगर आ जाए जो मुश्किल है तो उसे मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, ये भी एक कंक्लूजन होती है काफी बार जब ऑर्फनशिप पे लेडीज आते हैं, तो वो कई बार ऐसी प्रॉब्लम भी लेके आते हैं कि मुझे लगता है कि अगर ऐसे हो गया, कोई अनबन हो गई, या मैंने अपनी बात रखी आगे, या मैंने अपने डिसीजंस लिया, या मैंने अपने रिस्क उठाए, तो फिर आगे चल के अगर ठीक नहीं हुआ तो वो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं हैंडल नहीं कर पाई तो, अगर ठीक से नहीं हुआ तो, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये जो होता है ना, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, ये वाली टाइप की सोच, इसे हम कहते हैं ऑफुलाइजिंग। जैसे कि आप कैटास्ट्रोफाइज कर रहे दिमाग में, इससे हमारी एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये ऑफुलाइजिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, और इसे भी आप टू चेंज इट अगेन, वन थिंग दैट कैन हेल्प यू इज टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या सच में ऐसा है कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे या हैंडल नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज कोई चीज है जिसका आपको अभी सोल्यूशन नहीं पता। क्या ये जरूरी है कि आप इनकेपेबल है? क्या आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप सोल्यूशन सोचने के लायक ही नहीं है, या आप फिगर आउट नहीं कर पाएंगे? तो ये जो हम खुद में सोच लेते हैं डिलेमास के टाइम पे कि नहीं, शायद रिस्क इतना बड़ा होगा कि मैं नहीं ले पाऊँ या मैं हैंडल ही नहीं कर पाऊँ। मैं अक्सर लोगों को ये एडवाइस करती हूँ कि वो एक खुद की कॉस्ट बेनिफिट रिस्क एनालिसिस करें कि कॉस्ट कितने हाई हैं और बेनिफिट्स कितने हैं, और अगर कॉस्ट्स को मैनेज किया जा सकता है तो किस तरह से मैनेज करेंगे। अगर आप पहले से एडवांस में अगर प्लानिंग करें तो ये ज़रूरी नहीं है, मतलब आप अपनी एंग्जाइटी को फिर कम कर सकते हैं और इस सोच को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कई बार हमें हमेशा सोल्यूशन नहीं पता होता, कि अनसर्टेनिटी भी एक चीज़ होती है कि हमें पता नहीं है आगे चल के क्या होने वाला है। तो आप अभी से पूरी तरह की कॉस्ट बेनिफिट रिस्क असेसमेंट नहीं कर सकते, पर अगर आपका दिल है कि आप कहीं ना कहीं कुछ करना चाहती हैं, आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विशेज़ और डिज़ायर्स को फुलफिल करें, ताकि आप वो स्टेप्स लेके आगे सीख सकें। तो इससे हमारी एक इंडिपेंडेंस क्रिएट होती है, इससे हमारी एक आत्मनिर्भरता क्रिएट होती है, एक कॉन्फिडेंस भी उसी से बिल्ड होती है, जब हम आगे चल के इन चीज़ों को संभालने की एक क्या कहते हैं, जैसे एक विलिंगनेस लेके आते हैं, एक एक्सेप्टेंस लेके आते हैं। तो दिस वाज अबाउट एटीट्यूड्स, हाउ यू कैन चेंज योर एटीट्यूड्स और एनी फॉल्टी थिंकिंग जो आपको अपने साइकोलॉजिकल डिलेमास में ब्लॉक करके रख रही है। नेक्स्ट इज कि आप अपने बिहेवियर्स में किस तरह की चेंजेस ला सकते हैं, या व्यवहार में जैसे हम कहते हैं। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप सिर्फ अपनी सोच पे काम करेंगे लेकिन अपनी एक्शन पे फोकस नहीं करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी, स्ट्रेस वहीं की वहीं रह जाएगी। एंड सिमिलरली अगर आप सिर्फ एक्शन पे चेंजेस लाएंगे लेकिन अपने सोच पे चेंज नहीं लाएंगे, जैसे कि अगर आपको फेलियर का डर है, जैसे कि अगर आपको अनसर्टेनिटी का डर है जिसकी वजह से आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो अगर आप अपनी सोच पे भी साथ ही साथ काम नहीं करेंगे और सिर्फ अपनी एक्शन पे काम करेंगे, आप प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन अपनी सोच पे काम नहीं कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इससे भी सेम तरीके की प्रॉब्लम होगी। विच इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ योर थिंकिंग एज वेल एज योर बिहेवियर, कि दोनों में चेंजेस लाना जरूरी है और दोनों को समझना जरूरी है कि मेरी क्या नीड्स हैं, मेरी क्या डिलेमास हैं, मेरी किस तरीके की ब्लॉकिंग एटीट्यूड्स है, और मेरी कौन सी डिस्टर्बिंग इमोशंस हैं जिनकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या ब्लॉक्ड फील कर रही हूँ। तो बिहेवियर्स में बदलाव, मेरे सजेशंस ये हैं कि पिकिंग अप, एक्सप्रेसिंग योर नीड्स, प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर, खुद की देखभाल करना। थर्ड, कैलकुलेटिंग रिस्क एंड टेकिंग रिस्क। फोर्थ, डूइंग थिंग्स दैट यू वांट टू डू and not stopping yourself from doing them. Fifth, planning relaxation activities.
कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गोइंग आउट या मीटिंग फ्रेंड्स या मीटिंग पीपल, मीटिंग योर ओन सपोर्ट ग्रुप्स, जिससे आपको एक तरीके की कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होती है, एक तरीके की मेंटल हेल्थ बनी रहती है। तो ये सब चीज़ें भी एडिशनली बहुत हेल्पफुल होती हैं इन बिहेवियर्स। एंड प्लानिंग टास्क्स दैट ब्रिंग जॉय। फाइनली जैसे मैं कहूँगी कि सीकिंग प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ केयर। तो अगर आप कभी ऐसे किसी प्रॉब्लम पे आके फंस गए हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो प्लीज़ बेझिझक मेंटल हेल्थ केयर के लिए आगे चलें। जैसे मैंने कहा था, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती। ये हमारे कुछ इंफॉर्मेशन है आपके लिए, यू कैन प्लीज सेव दिस, दीज आर डिटेल्स। ये मेरा नंबर है, दिस इज आवर ऑल्ट माइंड शिफ्ट नंबर, so you can save this, all of you, and you can always call to take appointments. This is also the number to reach me directly on WhatsApp. मेरा ईमेल एड्रेस भी हमारा ऑल्ट माइंडशिफ्ट का ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.altmindshift.com, एंड वी आर ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप ऑल्ट माइंड शिफ्ट टाइप करके देखें, आपको ये लोगो दिख जाएगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी बार हम सेल्फ हेल्प के बेसिस पे कुछ वहाँ पे पोस्ट्स डालते रहते हैं कि हाउ टू कंट्रोल योर एंजाइटी, हाउ टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस। तो ये डिफरेंट टाइप के हम शॉर्ट पोस्ट्स भी उधर बिल्ड करते हैं, तो ये भी आपको हेल्पफुल हो सकती है। सिमिलरली फेसबुक पर भी आपको ऑल्ट माइंड शिफ्ट दिख जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये शॉर्ट ब्रीफ टॉक आपको हेल्पफुल लगा। अगर आपकी और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ फील फ्री। आई वुड लाइक टू ओपन दिस अप फॉर Q&A नाउ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रजिता रामचंद्रन, बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं आप और बहुत अच्छे से आपने समझाया। मैं देख सकती हूँ डॉक्टर जी रामचंद्रन, प्रिंसिपल सर, यू आर ऑल्सो हियर। Welcome to the show, and here I want to introduce Dr. G. Ramachandran is proud father of Dr. Rajita, and we are thankful to you, sir, for connecting us to Dr. Rajita. और जब आप आज बात कर रही थी तो वो जितने भी डिलेमास की आपने बात की वो यूनिवर्सली फॉर मैन एंड वीमेन ही हैं इन टोटल। चलिए, हमने उसे उस तरह से ले लिया। तो अगर कोई क्वेरी नहीं है तो मीनवाइल मैं कुछ देखना चाहती हूँ, बात करना चाह रही हूँ। डॉक्टर रुचिका और मैडम बंगेरा, कोई अभी क्वेरी? I do have queries. हाँ जी, प्लीज। Ma'am, my first query is, one of my friends is going through this bipolar disorder. Okay. Right? She has major mood swings. She is into depression. Many a times trying to help out such kind of patients, I would say, right? Yeah. We happen to forget our own self. Yeah. हम इतना देने में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारे खुद के जो इमोशंस हैं हम उनके सामने वो निकाल नहीं पाते। तो how to deal with such kind of situations? Right. Thank you for that question, Dr. Ruchika. जी, that is true. ऐसा कई बार होता है, especially when they are our close people that we care about. तो ऐसा हो सकता है that उनको डिस्ट्रेस में देखना हमारे लिए बहुत तकलीफदायक होती है। तो then we can also become too emotionally pulled into it. तो ऐसे टाइम पे ये एक याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम चाहे जितना भी जो भी कर लें, बियॉन्ड अ पॉइंट एक लाइन होती है जिसे हम भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सामने वाले के ऊपर भी है कि वो कितना हेल्प लेना चाहते हैं, क्या वो हेल्प के लिए रेडी हैं। और हर एक पर्सन की एक पेस भी होती है, द पेस ऑन विच दे वर्क। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम जैसा चाहते हैं कि उनके लिए हम उस तरीके की हेल्प लेके आ जाएं। तो लोगों के लिए काफ़ी बार ये एक हेल्पलेसनेस क्रिएट कर सकती है
कि हम और हेल्प क्यों नहीं कर पा रहे हैं या इनकी कंडीशन क्यों नहीं अच्छी हो रही है. But yes, I think it's very important to recognize that beyond a point that there is not much that anyone can actually do. If that is something that we can keep in mind, it may be very difficult because there are close relations, but it's still important to keep that in mind so that we are also not disturbed by that. And additionally, I would say sometimes some kind of counseling or help can be provided even as support to such people, like support givers. That is also something that can be helpful. Ma'am, one more question. Well, my name is Professor Upinder. I'm not Dr. Rajita. Oh, I see. Right, I can see that on your name. I'm sorry. I am Professor Upinder, and it's my it's my luck and privilege that we are both the alumni of the same university, University of Mumbai. I see. Right. Yeah. Okay. So, ma'am, I have one more question. My question is, can stress be good as well? Yeah. Okay. Yes. Yes. Thank you again for that question. Yes, stress. So we understand stress in two ways. One is the kind of stress. Basically, there is positive stress and then there is negative stress. Now, positive stress meaning what? Certain positive situations in life, like for example, planning a marriage, can become a positive stressor in that sense, and then there is a negative impact is the negative stressor. But when can stress be beneficial, if that is your question, right? Almost always stress, I wouldn't say, is beneficial at all, because there are ways to deal with a situation in much more healthier ways than getting stressed. जब हम स्ट्रेस हो जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ब्लॉक हो सकती है, हम बहुत एंशियस हो जाते हैं. So in that sense, technically, scientifically, if we see, there is nothing which can be helpful when we are stressed. So if you're concerned enough about a situation, like for example, you want to do well, somebody wants to do well in their exams. If you're concerned enough about how you are doing, how you're studying, then that should be good enough for you to get your result. Versus if you're too stressed out or you're too anxious, then they can even have blackouts, for example. You see, तो क्या जो भी उन्होंने पढ़ाई किया हो सकता है कि वो भूल भी जाएं. So in that sense, stress is not a very very beneficial thing, which is why stress से बहुत बार ऐसा भी होता है कि pending stress या जो stress चलती जाती है, constant stress से हमारे ऊपर health से related problems भी काफी बार साथ में आ जाती हैं. So yes, that's not something which is very very useful. Thank you, ma'am. Ma'am, there are a few questions in the chat box as well. So you want me to read it out for you? Yes, please. Yes, please. There's one question by one of the professors, Professor Navneet Bhaskar. She says, how can we overcome the problem of overthinking? If there was a one easy way to resolve this question, thank you, Navneet. That's a very broad question, but okay, let me try and bring this into some kind of a structure here, maybe. Navneet, the attitudes that I was talking about previously on the slide, certain kinds of rigid demands, when we make inflexible rules, that makes us more and more anxious. That makes us overthink more and more about some future consequences which we think we won't be able to manage. For example, if I want to apply for a job and let's say that job, I don't get the job, then will I not get any more jobs at all? Or let's say if I want to quit my job and if I don't get another job, then what will happen? Then will I not get any stability? Then will there be no money? Then will I have no future? Then will I not be able to plan other things? So this is an example of overthinking. You see, so sometimes we could get so stressed where we are overthinking a lot of things and we are forgetting that maybe there are some solutions as well. So yes, it's that would not be very beneficial, but the way to stop that could be to remind yourself that you can take it at one step at a time, one problem at a time, and not to go
directly to the end result like a catastrophe, like as if something that you cannot manage or handle at all. Ma'am, there's another question by Madam Jatinder. She says, if a person is constantly in a disturbed environment, then think he or she cannot change it. What could be done in such scenario to help that person? To help that person, that would be very, very difficult. Then in that case, if for that other, if this is, I'm assuming Jatinder madam's question is to help somebody else, right? Yeah, yes. Yeah. In that case, then you can probably look at what is their support system, how to build a small support system around them. So are there more friends that can help? Are there more people that can help? Can any kind of women's group support or any other group that is needed, any kind of a distress support group, can we take them to reach that group? So these kinds of other avenues, if we can create, then that can probably be helpful. Okay, another question by Professor Arun Bhalla. She says, what will be women empowerment in true sense? I would like to add to this question. Do you think women empowerment is going stress-free? Do you equate women empowerment being stress-free and being happy at the same stature? Yeah, okay, that's a wonderful question. Thank you. I wonder if there is realistically a possibility to be stress-free, So I don't think empowerment is about an ideal state of being stress-free. I think empowerment for most of us, men, women, all included, would be learning how to manage and handle your stressors so that you can develop the confidence to take better decisions right ahead, so that you're not feeling blocked or feeling stuck somewhere, so that you're able to go after your goals in life. That would be empowerment. But no, there would not, I don't think there is a state to be stress-free in any way. Because stressors will always be there, you see. External events are not in our control. So what stress will come and hit me, I will never be able to be in control of that anyway. True. One question by one of the students, Sapna. She asked, ma'am, why do we celebrate happiness with someone else? Why not all alone? Why do we need a company to celebrate happiness? Well, again, this is an interesting question. Sapna, thanks for that question. You can celebrate it even on your own if you choose to. It doesn't have to be dependent on others or other factors. I think what we mean is, when we spend time with others to, share joy, it's also something that makes us happy. But it doesn't have to mean that you cannot look for your own joy or do your own things and find your own joy. So yes, they don't have to be either or, they can be both as well. Ma'am, one last question from me. When people are normally in stress, I have seen around 60% of people, I have visualized and even heard, like the men, when they are in mental stress, they go into drinking, going for alcohol. And the females, they don't have any choice, right? Even the modern girls, I'm not taking those girls into concern, but yes, the females especially who are stressed, they happen to, many a times try to distract their mental stress, through beating their own self or on their child. Yeah. So how such kind of situation is to be dealt with? Yeah, when this happens, this is what we call, psychologically, we call this displaced aggression. And this can also come from the fact that if we are conditioned to suppress our own needs, right? And we also subscribe to suppression. When we subscribe and make the choice to suppress our own needs, then वो एक होता है ना कि कहीं ना कहीं तो फटना है, because where is the outlet coming?
So when healthy communication is not happening, when healthy expression is not happening, when your own goals are being suppressed by yourself, then that can happen for women. Women के लिए ये मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि उनके लिए काफ़ी सारे challenges in that sense होती हैं कि let's say if you speak up then you know what will be the consequences. तो काफ़ी बार वो consequences के डर से भी चुप रह जाती हैं. So ये एक होता है you know when there is a lot of frustration pending and building up, then it can become a displaced aggression on either in terms of self-beating, self-harm, or it could become you know on the next person ahead, right? So well, there is no one method or easy way to help this person, but yes, one of the things to do would be to, if you see such a person, to talk to them, and it would be completely all right to ask them if they are doing okay, that you are concerned about them, do they need any help, asking them, and how can they come out of their situations, or what would they consider help. So asking them this can bring solutions out, you know, from the women also. So then there could be a discussion, and there could be you know some points where they say, okay, I think I need help with this, or I think I need help with how to speak or whom to talk to, etc., or how to problem solve something. So that kind of discussion can then open up. So a good way to engage would be to ask them if they are okay, if you're seeing something, bringing that to your notice and telling them I'm concerned because I'm seeing this, and do you need any kind of help. These would be good questions to ask. Thank you so much, ma'am. Principal ma'am. Yes, Ms. Rajita. जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं 18 to 24 or 22 एज, most of them are very conscious about their body image and looks, और अक्सर वो कम पार्टिसिपेट करती हैं या खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाती. तो एज ए टीचर या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उनको कैसे एनकरेज किया जाए कि वो इसमें से बाहर निकले. एक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. नंबर 2 जो मेरा क्वेश्चन है कि एक जनरल हैबिट जेलसी एंड कंपटीशन, दैट इज नॉट हेल्दी वन, वो भी बहुत ज़्यादा होता है इस एज ग्रुप में. तो उसमें भी कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए. जी, थैंक यू मैम फॉर द क्वेश्चन. ऐसा मेरा मानना है कि जितना हम वुमेन्स ग्रुप के अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करें विद सॉल्यूशंस, उतनी ज़्यादा उनमें एक अप्रोच बनेगी कि अच्छा इसके बारे में बातचीत हो सकती है. अगर हम एक ओपन एनवायरनमेंट रखें जहाँ पे सपोर्ट ग्रुप्स हैं और ये ओपन डिस्कशंस कर रहे हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अच्छा ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, और या मेरी डॉटर की, या मेरी फैमिली में, या मेरे फ्रेंड, ऐसे यू नो लाइक इन एन इनफॉर्मल वे, बट ब्रिंगिंग अप मोर एंड मोर ओपन डिस्कशंस. अगर हम ओपन डिस्कशंस ज़्यादा करें तो ये एक तरह की सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकती हैं टू ओवरकम डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस. तो वो कॉम्प्लेक्स इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी फिर एक अवेयरनेस क्रिएट होगी कि उसको कैसे हटाया जाए, उसको कैसे मिटाया जाए, क्योंकि सोशली एक एज पे इन अ वे एक नॉर्मल भी होती है कि एक दूसरे को देख के एक पीयर प्रेशर भी बन जाती है कि ऐसा करना है या वैसे रहना है या ऐसा दिखना है. तो इन चीज़ों पे अगर ज़्यादा टॉक्स और अवेयरनेस हो, ज़्यादा प्रोग्राम्स हो, तो वो बहुत हेल्पफुल होती है मैम. कई बार ये ऑब्सेशन तक पहुंच जाता है, मतलब कि देन साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए आई थिंक उस केस में. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. और उससे पहले टीचर्स काफी रोल प्ले कर सकते हैं बाहर निकालने के लिए स्टूडेंट्स को. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. टीचर्स अगर फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, अगर ऐसी मीटिंग्स रखी जाएं, ऐसी डिस्कशंस रखी जाएं कि कैसे स्पेसिफिकली वुमेन्स इश्यूज को, इन तरीके के इश्यूज जो आप ज़्यादा देखते हैं, तो इन चीज़ों पे किस तरह एक छोटी सी सपोर्ट ग्रुप्स लेके आएँ, या अनोनिमस फाइल्स क्रिएट किए जाएँ जहाँ पे अनोनिमसली स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स फिल कर रहे हैं, ताकि उनकी वो डर भी निकल जाए कि अच्छा मेरी टीचर के पास ये जा रही है, राइट, एक सीनियर के पास जा रही है. तो अगर एनोनिमस फाइल्स भी क्रिएट ऐसे कर सकते हैं, फॉर्म्स, एंड उस पे अगर अपने प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं, तो उस पे टॉपिक एक बन सकता है जिस पे डिस्कशंस क्रिएट हो सकती है, यू नो वीक टू वीक में भी, इट कुड बिकम मंथली डिस्कशंस, बट ऑल ऑफ दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल टू ओपन डायलॉग्स. एंड येस, आई विल ऑल्सो recommend if it becomes obsessive,
or dysfunctional in any way, then psychotherapy is recommended. Yes. So it would be beneficial for then the senior person to also recommend the kind of psychotherapy help. Please feel free to recommend anybody to us also at Alt Mindshift. Yes. We would be more than willing to help students out. और स्टूडेंट्स के अलावा एक मतलब कि बड़े एज ग्रुप में भी देखा जाता है, जैसे ओवर थिंकिंग की बात हो रही थी, वो एकदम से कंक्लूजन पे जंप करना और नेगेटिव कंक्लूजन पे जंप करना बहुत ज़्यादा आदत होती है, और वो जो सामने वाले के सामने अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, और जब सामने वाले से बात करते हैं इवन वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि डायरेक्ट ये नेगेटिव कंक्लूजन क्यों है, वो भी शायद ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। जी बिल्कुल, हाँ जी, यस मैम। ओवर थिंकिंग की वजह से भी एक होता है, एक होता है कि फियरफुल कंक्लूजन्स बनाना, फियर के बेसिस पे। काफी बार हम नेगेटिव कंक्लूजन्स तब बनाते हैं जब हमारी किसी एक एंजाइटी से जुड़ी होती है कोई सोच, कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा, वैसा कुछ हो गया तो अच्छा मुझे ये कंट्रोल में लाना जरूरी है ताकि कोई बुरा कुछ ना हो, कोई कॉन्सिक्वेंस बुरा। तो यूजुअली सोच यहाँ से शुरू होती है और फिर वो ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। तो यस, दैट्स ट्रू। इन चीज़ों के लिए भी अगर हाउ टू कंट्रोल एंजाइटी फॉर एग्जांपल, एक अगर इस पे भी टॉक, डिस्कशन, वर्कशॉप या ऐसे ऑनलाइन भी बहुत मीडियम्स होते हैं कि एंजाइटी पे रिड्यूस कैसे करना है, वो जैसे ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल से भी आना चाहेंगे। जैसे एट ऑल्ट माइंडशिफ्ट वी प्रैक्टिस रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जो एक कॉग्निटिव मॉडल है। तो अगर आप स्पेसिफिकली कॉग्निटिव मॉडल पे भी रिसर्च करें तो आपको काफ़ी सारी इस पे टिप्स, क्लूज और इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगी कि हाउ टू वर्क ऑन दिस। ये भी एक बहुत अच्छी डिस्कशन टॉपिक बन सकती है। समटाइम्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बहुत टफ होता है ऐसे लोगों के साथ डील करना जो नेगेटिव से ही नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं और नेगेटिविटी से ही अपनी बात स्टार्ट करके नेगेटिविटी पे ही एंड कर देते हैं। सो इट्स वेरी टफ कि उनको बहुत आप कितना उन पर ध्यान रखेंगे कि उन्हें पॉजिटिविटी की तरफ लाया जाए। सो इट्स वेरी गुड लेक्चर एंड आई थिंक मॉडरेशन इन ऑल द थिंग्स इज द की। Yes, ma'am. Moderation, I would say, self-awareness, self-knowledge, which is, I think, a constant practice for all of us. So, to all the ladies over here, women, all the students, I would say the same thing. Developing that kind of self-awareness, knowledge about your own needs, what is happening to you, what emotions are coming, and then making a decision to work on it. बिकॉज जैसे आपने कहा, कई बार आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो बहुत नेगेटिव से नेगेटिव स्टेट से आते हैं और वो पहले से डिसीजन लेके आते हैं सब, तो उनको हम फिर हेल्प नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी एक विलिंगनेस की भी बात होती है कि वो कितना विलिंग है टू लुक एट द अदर साइड। तो वहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन यस, अगर सेल्फ अवेयरनेस से लोग आ रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है फॉर विमेन्स डिलेमास। हम उस तरह से सपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स क्रिएट किए जा सकते हैं, तो डिस्कशंस आगे लिए जा सकते हैं। दैट कैन आल्सो बी वेरी हेल्पफुल मैम। Thank you, Ms. Rajita, for this interactive talk and vibrant presentation and prudent deliberation. Over to you, Mangera Rupinder Kaur, for vote of thanks, please. Okay, this was actually a wonderful culmination of this 8 days women's series. Because at the end, every woman wants to go stress-free, and I guess with your answers, ma'am, we actually had headed to this goal, probably each one of us. So I extol the time you took out from your busy schedules for this lecture, and we look forward to many more future deliberations with you. Sir, we thank you as well, Dr. G. Ramachandran ji. We thank you as well, and Madam, your insights was really valuable, and at the same time, it was really, boosting us. It actually boosted us. Thank you. I'm so glad. It was my pleasure to be here. Thank you so much for inviting me. Best wishes and have a cheerful day. Thank you. Thank you. नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अनम्यूट नहीं कर पाए खुद को।
Anji, I think he may not have heard or figured that. Yes. Thank you. Thank you. I'll leave the Have a nice. session. Thank Thank you so much.